Hello, everybody. How have you been? Welcome to Super Grads, and I am your English mentor, Sana ma'am. And today I'm here with this much awaited session on this amazing series called Most Expected Questions for IPMAT Rohtak 2024. Why am I calling this an awaited session and the series amazing? Obviously, because all of you know that, the previous year papers of Rohtak, the recent ones are not available. That is one very major reason why students are absolutely darting in the dark, hoping to find some beacon of light here, and that is where we come into the picture. So आज हम आपको बताने वाले हैं on the basis of all the analysis that we have done with our students year after year, what exactly this paper would look like, right? We would be talking about a lot many things today. I'll show you. So today, all these things are in store for you. आज हम आपको बताएंगे the paper pattern. Along with that, of course, as I'll discuss the paper pattern in detail, you'll get to know that there's a very heavy weightage of vocabulary and grammar. So if you're good with vocabulary and you're also good with grammar, your concepts are well in place, then be ready to rock. All right. So today, I am covering up vocabulary. Tomorrow, I'll be taking up grammar. And under the ambit of vocabulary, we have a wide motley of questions, I must say. We have synonyms, antonyms, idioms and phrases, analogies, fill-ups, one-word substitution, right? And finally, there is one nice takeaway for you today, right? On every question type, I will be throwing up an assignment. That's going to be a challenge, and I want to see who takes up that challenge. So students, you have to meticulously, with utmost sincerity and honesty, you have to attempt all these assignment questions. Please share your answer with the question number in the comment section. I'll be looking forward to your responses. All right. So without further ado, let's dive in. So see, this is what the paper pattern was like, right? Now, vocabulary had a substantial weightage, okay? 10 to 12 questions on vocabulary you can easily expect. All right. 22 में vocabulary काफी difficult आया था. अच्छा खासा difficult आया था, right? Whereas 23 में it was still doable. But 23 saw a jump in the grammar-based questions with a higher weightage. So in a way, जो मैं picture पोर्ट्रे कर रही हूं आपके सामने, कंसिडर इट एज अ जनरल ट्रेंड जो हमने निकाला है 22 और 23 के पेपर्स का. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का काफी वेटेज आपको नजर आ रहा है. सो यू कैन एक्सपेक्ट around 3 questions or 4 questions each on synonyms, antonyms, and most of the time they're standalone questions, right? ऐसा नहीं हम देख रहे ज्यादा कि एक सेंटेंस में एक वर्ड दे दिया गया और फिर उसका मीनिंग पूछा, because that way तो आप गेस कर ही लोगे, right? They want to see how good your vocabulary is, whether you know the word as such or not, right? So हम भी आज डिस्कस करेंगे. एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी ओवरऑल बहुत हाई नहीं होती है, मॉडरेट ही होती है. ठीक है, बट जो हम सेक्शनल कट ऑफ्स की बात करते हैं यहाँ तो पेपर में है नहीं, दैट्स एन एडवांटेज. बट ओवरऑल कट ऑफ लास्ट ईयर 409 गया था फॉर जनरल कैटेगरी. दैट इज a very difficult benchmark that's been set in front of you, and we have to prepare ourselves so that we can cut the mustard, right? इसलिए हमारी preparation में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए. ठीक, all right. Idioms के भी हम last year around 2 questions थे, उससे पहले around 5 questions थे. Fine. So if you're preparing for IPMAT Indore, then I'm sure you're already doing well with idioms, right? Fill-ups, analogies. देखिए, fill in the blanks तो इंदौर में भी बहुत आते हैं, ठीक है? So I'm sure you are already well versed with them. But coming to analogies, there are some topics which students tend to neglect. One word substitution, spelling, these are such topics. हम normally उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, right? Especially one word substitution, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली तो नहीं आया पेपर में, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली कोई एक अलग क्वेश्चन टाइप में नहीं मानूंगी इसको. इफ यू नो द वर्ड, या तो तुमको वो वर्ड दे देंगे और उससे सिनोनिम पूछ लेंगे, या फिर वो आपको मीनिंग भी दे सकते हैं एक वर्ड का, एंड देन दे माइट गिव यू 4 ऑप्शंस एंड आस्क यू व्हिच वर्ड वुड बेस्ट रिप्रेजेंट द गिवन मीनिंग. सो अल्टीमेटली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ ही लो, ठीक है? And I have incorporated 2 questions of the category, all right, so that you get a glimpse of the topic and you are not at sea if at all it comes, all right?
ऑफ कोर्स ग्रामर लास्ट ईयर बहुत ज्यादा आया था, उससे पहले कम आए, लास्ट ईयर 10 to 12 क्वेश्चंस थे और ग्रामर का लेवल थोड़ा अप था, ठीक है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू एक्सपेक्ट 3 पैसेजेस आउट ऑफ विच दे नॉर्मली आस्क यू शॉर्ट पैसेजेस. 2 पैसेजेस छोटे थे, राइट. एक पैसेज थोड़ा लंबा था, अराउंड 500 वर्ड्स और मे बी मोर देन दैट, स्लाइटली मोर देन दैट, राइट. 3 to 4 क्वेश्चंस ईच. Para jumbles, 4 questions, but then MCQ types. Okay, so you don't have to worry. And yes, those questions were easy, much easier as compared to Indore. And finally, yes, this was a surprise, slightly odd statement type का आया. यानी कि 3 स्टेटमेंट्स थे जिनका एक पैराजम्बल आप बना सकते थे और एक स्टेटमेंट था जो और जा रहा था, ठीक है ना. सो we're clear with the pattern. Now let's move forward. And students, I hope you're sitting down with pen and paper. All right. You might not need to write down much, but then I expect you to take a note of all the nice new words that you learn, right? And any trick that I might tell you, make a note of it. Okay. Learn, participate. That's the objective. Let's jump to the first question. We're starting with idioms क्योंकि कई लोग idioms को बहुत ज्यादा neglect करते हैं. This is not going to be a very lengthy and a very difficult kind of a session, not a heavy session actually. I'll keep it brief and crisp, right? Idea ये है कि हर टॉपिक का आपको क्वेश्चन दिखाया जाए और उसकी डिफिकल्टी लेवल आपको समझ में आए, so that you can prepare accordingly on the same lines, right? Okay. कुछ नहीं करना है आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है एंड आपको एक अंडरलाइन वर्ड है या हाईलाइटेड वर्ड है, आपको ये पता लगाना है which of the given idioms can actually fit in. Normally we are used to this kind of a question कि एक idiom दिया और उसका मीनिंग पूछा जा रहा है, but here it is the reverse. So let's attempt this. बताइए क्या आंसर होना चाहिए? Tell me. The article on the world population published in today's journal is a duplicate of what was published the other day. Nice. What do you think could be the answer? For that, of course, you need to know each and every idiom given here. नहीं भी पता, अगर lucky अगर आप हो तो आपको spot on हो सकता है, right answer पहले से ही पता हो, ठीक है. Otherwise, yeah, options can sometimes be very close and very confusing. On tenter hooks, no. On tenter hooks का मतलब होता है जब आप बहुत ही बेचैन रहे, restless रहे. Okay, I was expecting my exam result the next day, so I was on tenter hooks the whole night. ठीक है, this certainly cannot be the answer. It's actually dead ringer. What is catch-22? Catch-22 एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत ही पजलिंग होती है, ठीक है, जहां पे आप एक तरह से अटक जाते हो and you don't know what to do. Because एग्जाम्पल मैं आपको एक दूंगी इसका. फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्रेशर होता है तो कहीं पे भी वो अप्लाई करता है जॉब के लिए, तो उससे बोला जाता है दैट यू आर अ फ्रेशर, वी आर हायरिंग एक्सपीरियंस पीपल, वी नीड एक्सपीरियंस पीपल. बट देन एक्सपीरियंस कैसे आएगा जब तक कोई जॉब पे नहीं रखेगा? तो ये हो गया ना catch-22. फंस गए ना आप भाई. ठीक है, आई हैव गॉट टू हैव एक्सपीरियंस, बट देन इफ यू हायर मी ओनली देन कैन आई गेट एन एक्सपीरियंस. सो व्हाट वुड अ फ्रेशर डू अल्टीमेटली? सो इट्स अ catch-22. ठीक है, अ सिचुएशन वेयर इट्स वेरी पजलिंग एंड यू आर ऑलमोस्ट स्टक देयर. ऑलराइट, a wee bit is a little bit, ठीक है. So answer is dead ringer, which means it's a duplicate of something. Question 2, answer please. We will be very encouraged if you keep on sharing your answers in the comment section, class. That really means a lot. And yes, if you like the session, please like, share and subscribe. Let's turn to question number 2. Even though he is a learned person, he talks nonsense when it comes to morality and integrity. The highlighted word is this, talks nonsense. क्या होगा आंसर? आई थिंक यहाँ पे तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो. Idioms को थोड़ा mnemonics के थ्रू अगर हम करते हैं तो things become easier. I'll give you some mnemonics, right? That way आपको समझ में आने लगेगा. Okay, अभी तो आंसर की बारी. आंसर क्या होगा? Yes, answer is A. Talk through one's hat. Talk through one's hat is when you talk foolishly, okay? And yes, of course, इसका निमोनिक हम ऐसे कर सकते हैं कि देखो आपका हैट है, हैट के अंदर दिमाग है, तो दिमाग लगाओ, है ना. आप क्या सुपरफिशियली आप ऊपर से सोच के जवाब दे रहे हो. So you are actually sounding foolish. You are talking nonsense. You're talking through your hat. Okay? I hope this is a good enough mnemonic and you will be able to remember. All right. Bark up the wrong tree when you're actually approaching
the wrong person, or you're following an absolutely wrong course of action. All right, that is bark up the wrong tree. Fine. For example, आपको admission related कोई query है and you come to Sana madam asking her that, so I would say nahi, you've got to contact the admissions team. You're barking up the wrong tree. Like a cat on hot bricks. क्या होता है cat on hot bricks भाई? Imagine you are put on a hot brick. क्या रिएक्शन होगा? You'll become very very fidgety, very restless, बहुत बेचैन हो जाओगे. And somebody as frisky and as lively as a cat, imagine क्या ही हाल होगा. So when you are acting like a cat on hot bricks, मतलब बहुत ज्यादा बेचैन हो, almost तांडव मचा रहे हो, परेशान हो रहे हो बहुत ज्यादा, right? Obviously ये आंसर नहीं. Show a clean pair of heels. What does that mean? Clean pair of heels का मतलब है to run away quickly. All right? Yes. So ये जो idioms मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट idioms हैं और लेवल को असेस करते जाइए, कोई बहुत हाई एंड नहीं है, ठीक है. सो नाउ वी कम टू योर असाइनमेंट बेस्ड ऑन idioms, राइट. अब यहाँ पर कोई सेंटेंस नहीं है, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप ऑफ गेसिंग द idiom. यू हैव बीन गिवन दिस वर्ड हॉब्सन्स चॉइस. हॉब्सन्स चॉइस का क्या मतलब हो सकता है क्लास? क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज योर असाइनमेंट. कम ऑन, क्विकली शूट योर आंसर्स. शेयर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. ओके, आई होप आपने देख लिया क्वेश्चन अच्छे से. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट नाउ. नाउ read the directions very carefully. Sometimes a question type may have a different form. This might intrigue you, so that is where the directions would come handy, right? यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपसे बोल क्या रहा है, दो चीजें. या तो वो वर्ड wrongly spelled है, या ये भी हो सकता है कि वो वर्ड inappropriate हो. तो आपको दोनों तरफ से सोचना होगा. कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वर्ड का कंफ्यूजेबल दे दिया गया, राइट? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, या वो वर्ड सिंपली बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है, इट डजंट मेक सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो let's have a look at this. Without manners, violence enters the room, and without the decency of imagination, narcissism leads. आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट? आपको जिस भी वर्ड में प्रॉब्लम लगती है इन टर्म्स ऑफ suitability और इन टर्म्स ऑफ spellings or whatever, you have to mark that one as your answer. Simple. Well, what should be the answer? Yeah? The answer is clearly D delta. Spelling error है, very basic. This is just a spelling error. और narcissism में double S आएगा. What does narcissism mean, by the way? Excessive self pride and self love. Narcissists बहुत ज्यादा egotists होते हैं और हद से ज्यादा self loving people होते हैं. Hence it's very difficult to put up with them. All right? तो spellings are also important. Spellings, जब भी कोई आप नया word सीखते हैं, this is a tip for you. Write down the word 2 to 3 times. Okay? आजकल हम लोग डिक्शनरीज में कर रहे हैं, वहीं पे अपनी जो एप्स है उन्हीं में वर्ड सेव करते हैं. हमारी पूरी वर्ड लिस्ट जो है सब डिजिटल हो गया है. बट you know, please remember the power of writing. When you write something, you're able to learn things better. ठीक है? तो जब भी आप कोई नया वर्ड सीखते हैं, please remember the spelling well. The next one of the similar category, same directions. Okay. Rajendra motioned him to silence and started pacing the room, obviously in great tensity. Yeah, बताइए. Okay. Motioned, pacing, obviously no error. ठीक है, बताइए क्या आपको लगता है? All right, all right, all right. The answer is no error. Absolutely fine है सारे वर्ड्स यहाँ पे. इनफैक्ट कई लोगों को ऐसा लगता है कि टेंसिटी सही है क्या? इनफैक्ट टेंसिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेंसिटी वर्ड भी सही है. एनीवे ये ऑप्शंस में नहीं है. टेंसिटी का मतलब टेंशन ही होता है. इट्स अ वेरी नॉट अ वेरी कॉमनली नोन वर्ड. ठीक है, सो यू लर्न अ न्यू वर्ड हियर. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Spelling based assignment, question number 6. This is your next assignment. जी, आपके सामने 4 वर्ड्स दिए हुए हैं.
You have to identify the one which is incorrectly spelled. See, you always have to be very, very discreet and prudent while reading the directions. बहुत important है directions, अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है? कभी वो आपसे correct पूछ रहे हैं, कभी वो आपसे incorrect पूछ रहे हैं, ठीक है? This is your challenge number 2. Share your answers, all right, in the comment section. So this was a sample based on spelling. या तो इस तरह से हो सकता है, फिर सेंटेंस में यूज हो सकता है, अप्रोच बिल्कुल सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप. Now, since we had ample of, in fact, we had a deluge of synonyms and antonyms, तो उसको डिस्कस करना तो बनता ही बनता है. यहाँ पे भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा नोट करिए. जो वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, सम ऑफ देम आर लाइक रियली हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स व्हाइल सम आर नॉट. सो इसके लिए मैं आपसे बस ये बोलूंगी कि कोशिश करिए कि थोड़े से आपके एटलीस्ट जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट्स होती है, यू कैन गो थ्रू दैट. आई नॉर्मली डोंट रेकमेंड यू क्रैमिंग अप वर्ड लिस्ट्स, बट एट दिस आवर, एट द 11th hour when your exam is just around the corner, I think this is going to be very helpful, right? तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक से, चाहे वो जो हमने आपको जीएमबी में लिस्ट दी है, आरएसएम्स में लिस्ट दी है वो, या फिर आप अरुण शर्मा की हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट फॉलो कर सकते हैं, या नॉर्मन ल्यूइस में भी जब वो रूट्स पूरे पढ़ा देता है, एंड में एक वर्ड लिस्ट दी हुई है A to Z, वो भी बहुत अच्छी लिस्ट है. आप उनको फॉलो करिए, उन वर्ड्स को याद करिए विद द सिनोनिम्स, एंड आई एम श्योर आपको बहुत इंप्रूवमेंट लगेगा. ये वर्ड्स जरूर जरूर फंसने वाले हैं. चलिए ठीक है, कमिंग टू दिस साथ दिया हुआ है, आपको ऑपोजिट बताना है भाई. इसका आपको एंटोनिम बताना है. पहली बात है, वर्ड का मतलब पता है तो ठीक है, वरना आप कुछ कर नहीं सकते. हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको वर्ड का तो मतलब नहीं पता, बट ऑप्शंस पता है, ऑप्शन में जो जो वर्ड्स हैं वो आपको पता है, एंड वहां पे ऑड वन आउट लग रहा है, मतलब 3 वर्ड्स जो हैं वो एक जैसे हैं और एक वर्ड बिल्कुल ऑपोजिट है. दैट इज वेयर यू कैन टेक अ स्मार्ट गेस एंड यू कैन मार्क दैट एज योर आंसर. ठीक है, सो दैट वाज अ नाइस टिप फॉर यू. ऑलराइट, असैट्स का आंसर क्या होगा? आंसर इज ओरिजिनल. असैट्स का मतलब होता है इमिटेशन, ठीक है, या फिर कोई जाली चीज जो आर्टिफिशियल है, जो ओरिजिनल नहीं है. अब काउंटरफीट इज एक्चुअली अ सिनोनिम, समथिंग व्हिच इज फेक इज काउंटरफीट. सो ये तो क्या है? एक सिनोनिम है इसका. मंडेन इज अ डिफरेंट वर्ड. तो मंडेन का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज वेरी रन ऑफ द मिल, जो बहुत ही रेगुलर है, मोनोटोनस है, घिसा पिटा है. ठीक है. Imitation is of course another synonym of ersatz. Original is the antonym. Skittish. मैंने जैसे आपसे बोला था कि जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे खासे लेवल ऑफ डिफिकल्टी के होते हैं. स्टूडेंट्स फेल्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको आंसर करने में, अटेम्प्ट करने में. इसीलिए अगर आप रोहतक में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपको अपनी वोकैब और ग्रामर ये सब करनी ही करनी होगी. एज फार एज पैसेजेस आर कंसर्न, पैसेजेस काफी मॉडरेट लेवल के आते हैं, एंड आई एम श्योर वो इंदौर के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे हो. ठीक है. स्किटिश की जब हम बात करते हैं, स्किटिश का आपको क्या करना है? बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? सिनोनिम, राइट? पहले तो ना डायरेक्शन क्लियरली पढ़ा करो, सिली मिस्टेक्स मत करना पेपर में. मेनी स्टूडेंट्स कम टू अस, अरे मैडम वो तो सिनोनिम मार्क कर दिया, उससे तो एंटोनिम पूछा था, हमने देखा ही नहीं. ये गलतियों का कोई स्कोप नहीं है. स्किटिश इज फ्रिस्की. फ्रिस्की इज वेरी प्लेफुल. ऑलराइट, प्लेफुल, समटाइम्स इवन फ्रिवलस. A frisky kitten, a skittish kitten, playful. But at the same time, if you call somebody, a person as skittish, it could either mean that they are very active and playful and jovial, or it could also mean कि वो थोड़े frivolous हैं, थोड़े silly. आप जहां पे serious होना चाहिए उसको भी कुछ ज्यादा ही टेक इट इजी और बहुत ही लाइटली ले रहे होते हैं, या बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं, राइट? तो इस वर्ड को जब आप रिसर्च करोगे तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं. हियर fastidious का मतलब आपको पता होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है. fastidious is somebody who's very finicky, overly particular about the minute aspects of something. ये तो बिल्कुल ना हो पाएगा. impudent is another high frequency word class. ठीक है. so impudent का भी मतलब क्या होता है? very rude. all right, चलो
तो हम क्विकली थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए। ठीक है, ये आपके लिए मैंने एक असाइनमेंट किया है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे एक असाइनमेंट बेस्ड। चलिए लेट्स क्विकली डू दिस। हाँ जी, ऑलराइट, इसका आंसर आप मुझे सेंड करेंगे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 का। Now finally we come to analogies. All right, so analogy आप देख चुके हो, this is nothing new, this is no surprise. Analogies में आपको दो words दिए हैं, dwell is related to denizen as inherit is related to what? You have to choose that word from the option, right? तो dwell, denizen कौन होता है? Inhabitant या citizen. तो वो dwell करता है, वो रहता है कहीं पे, ठीक है। तो dwell is to denizen, inherit is related to what? Denizen dwells. Who inherits? Is it a successor or is it an heir? यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अक्वायर आप समझ रहे हो, नहीं, हमसे सिनोनिम नहीं पूछा जा रहा है, सो दैट इज बिल्कुल आउट ऑफ द गेम। आउटकास्ट इज जिसको आपने एकदम बिरादरी से बाहर कर दिया या बॉयकॉट कर दिया, तो वो भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं एयर की और सक्सेसर की, तो आंसर होना चाहिए एयर, क्योंकि एयर है वो इनहेरिट करता है, राइट। सक्सेसर कोई और भी हो सकता है, anybody who sits on the throne after a particular king, right, or any authority, उसके बाद में जो भी उस particular title पे आएगा उसको हम successor बोलेंगे। That person may or may not inherit anything from the family inheritance, so the answer has to be heir. Okay class, let's do one more of this kind. Annotate is related to text as caption is related to, बताइए। तो एनोटेट, आप कोई भी टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट लिखा है, मैं अंडरलाइनिंग कर रही हूं या मैं एलिमिनेशन कर रही हूं या कुछ भी लिख रही हूं, कुछ भी ड्रॉ कर रही हूं, दैट इज एनोटेशन। तो टेक्स्ट पे कुछ फर्दर आप लिखते हो उसके बारे में कुछ बताने के लिए, सो दैट इज एनोटेशन, राइट। वैसे ही कैप्शन के लिए हम क्या कुछ लिखते हैं, टू रिप्रेजेंट इट और टू बेटर एक्सप्रेस इट। नॉवेल, लॉ, फिल्म, फोटोग्राफ, है ना। कैप्शन फोटोग्राफ को फर्दर हम बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, है ना। फोटोग्राफ को डिटेल उसको करने के लिए कैप्शन, जैसे हम टेक्स्ट को डिटेल करने के लिए एनोटेशन करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एंड फाइनली वी कम टू अ नाइस थिंग व्हिच इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हम पहले ही बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ में इन आवर सीरीज एंड इन द मॉक एनालिसिस एंड एवरीथिंग। सो लेट्स ट्राई आवर हैंड्स एट दिस वन। दिस वन इज स्लाइटली ट्रिकी, मे बी थोड़ा दिमाग लगेगा, ट्राई करते हैं। होमो सेपियंस, द प्राउड स्प्लिटर ऑफ द एटम, inventor of the electronic computer, dash of the genetic code, may be humbled by a lowly dash of the sewers and soils, the microbe. यानी हम कह रहे हैं कि होमोसेपियंस माइक्रोब से हम्बल्ड हो सकता है। एक माइक्रोब, जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा ना, कि एक वायरस, एक छोटा सा वायरस कितनी तबाही मचा सकता है, हमें हमारे घुटनों पे ला सकता है। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। अब आपको ये समझना है कि डैश ऑफ द जेनेटिक कोड, हमने ऑफ कोर्स स्प्लिट किया एटम को, है ना, कंप्यूटर को इन्वेंट किया। जेनेटिक कोड को हमने क्या किया? क्या हमने उसको डिजाइन किया है? नो, हमने उसको सिर्फ आई थिंक डिस्कवर किया है, या फिर डिकोड किया है, या फिर इंटरप्रेट किया है, डिसाइफर किया है, रीड किया है, ऐसा ही कुछ हो सकता है। वी आर नॉट द राइटर, आर वी द डिस्कवरर? मे बी। आर वी द डिसाइफरर? यस, ऑफ कोर्स वी आर, है ना। अब नेक्स्ट उसमें देखिए, ये माइक्रोब के लिए बोल रहा है कि ये मिट्टी में और ये स्यूअर्स में रहने वाला, नालियों वालियों में, गंदगी में रहने वाला। तो यहाँ पे डेनिजन या इनहैबिटेंट ऐसा कोई वर्ड आना चाहिए, राइट। देखते हैं, इनहैबिटेंट हो सकता था, बट दिस ऑप्शन इज ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम, दिस इज ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम। कैन नॉट बी अ रोडेंट, रोडेंट तो चूहे को बोलते हैं, रैट को बोलते हैं, वुड नॉट मेक सेंस। डेनिजन, यस, सो फाइनली योर आंसर इज डी। हाउ सिंपल, नाइस। तो चलिए ठीक है, देखती हूं मैं कि एक ऐसा ही क्वेश्चन आप क्या खुद से क्रैक कर पाओगे। बहुत ही आसान है, आई वांट यू टू डू दिस वन।
Please share the answers to question number 14. This is your assignment. 14th का आंसर आप मुझे बताइए. I want to see how good you are with fill in the blanks. Question number 14 is your assignment. Okay? चलिए, I hope आपने नोट कर लिया है. And finally, मैं आपको बताऊंगी one word substitution, जो कि कुछ नई चीज नहीं है, right? As I've already discussed, कि word का meaning दिया है and आपको one word में उसको represent करना है. So let's have a look. A person with an obstinately uncooperative attitude. बहुत ही अड़ियल है, जिद्दी है, ज्यादा एमिनेबल नहीं है, कोऑपरेट नहीं करता, तो वो क्या हो सकता है? बताइए. Yes, of course, I think you know it should be recalcitrant. डिसोनेंट इज जहां पे डिस्कॉर्ड है, जहां पे आप अग्री नहीं करते, डिसोनेंस है. बट वो ऑब्स्टिनेट वाला इसमें एटीट्यूड कवर नहीं होता है. वो जो जिद वाला है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं टस से मस नहीं होगा, वो वाली चीज नहीं कवर होती. क्लेयरवॉयंट जब आप फ्यूचर फोरसी कर सकते हो, you have those special psychic powers when you can actually see what is going to happen. That is clairvoyance. Another nice word. Okay, jot it down. Poignant is something which is very emotional, touching, moving kind of a thing. This was a poignant story of a child who was a victim of human trafficking. ठीक है? So I think clearly you've got a glimpse of all the major question types, class. And that's all. आपका final assignment question number 19. आपको मुझे इसका आंसर देना है. So if you've watched the video and if you've been through there, of course मुझे उम्मीद है कि आपने देखा ही होगा, आपने समझा होगा, लेवल असेसमेंट कर ली होगी, तो आपके आंसर जरूर आने चाहिए. ठीक है? And then like, share and subscribe. It's absolutely free. आपका कुछ नहीं जाता. चलिए then, keep practicing, keep rocking. Class, that's all for today. Thank you so much. Thanks for watching us. If you have any queries, write to us. Thank you.